Hey everyone, today I'm going to tell you some answers of the exercise of chapter 1. It is testing time, multiple choice question. You can see a number blank software is the most important component for running a computer. So here answer is system software. Now B number, which of these is not a utility software? So here backup is not uh, utility software. Next, next is operating system is a blank that control and facilitate the overall activity of the computer. So here is software. Okay. An operating system is a software that controls and facilitates the overall activity of of computer. Now D number. Which of these is not an operating system? So here Paint is application software. It is not an operating system. Next is uh, an operating system does not perform which of these functions. So it do not do human management. Okay, which of these is not type of operating system? So operating system hand operated operating system is not an operating system. We have not seen such type of operating system. Next, let's do fill in the blanks. So the very first one, here we can fill software. Software controls the overall functioning of a computer and gives the desired output based on the instruction given by the user. Now B number, operating system keeps track of programs, that is what part of each are in use, by whom, what part are not in use. Now C number, the program responsible for processor management is known as traffic control. Okay. Now D number, the operating system facilitates network communication by enabling connected network device to communicate with the computer and with any memory that require them. Okay. Now the E number is processor's time, which is sharing among the multiple users simultaneously is termed as टाइम शेयरिंग. इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स आप भर लिए. नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स. देखिए पहला, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन. डिस्क डिफ्रैगमेंट डिवाइड्स ए लार्ज फाइल इनटू पीसेस एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशन ऑन डिस्क. तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये करता है ऐसा काम कि छोटे छोटे पीस में करके उसको डिफरेंट लोकेशन में सेव करता है. सो इट इज ट्रू. नाउ बी नंबर, and a utility software plays an important part helping users execute different tasks using computer. तो ये भी true है. Operating system manages device communication through their respective drivers. ये भी true है. और D number, programs do not have to be designed to run with the particular operating system in order to function. क्या कहा जा रहा है कि प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं डिजाइन किए जाते हैं कि वो टू रन विद पार्टिकुलर खास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो चलेंगे. फॉल्ट है. प्रोग्राम्स को बनाने के पहले ये सोचा जाता है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये चलेंगे. द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट and display of required updated information is termed as response time. बिल्कुल ये सही है, ये ट्रू है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर में. इट इज हियर द क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द various types of software and their uses. So from page number 5 and 6 we have to do this. You can see here. So it is from page number 5. You can see you have to write software. Various types of software are categorized into two broad categories, that is system software and
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप लिखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। Part of it is also known as operating system, which helps start computer and works as a main platform in order to run any application. उसके बाद लिखेंगे types of system software are operating system, programming software and utility software। उसके बाद सीधा हम लोग application software पे चले जाएंगे, ठीक है, और फिर application software से लिखेंगे An application software plays an important part in helping user execute different tasks using computer. It is designed to be used by end user. Application software includes software such as database program, word processor, spreadsheet, email application, computer game, graphics programs, etc. यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का जो है शॉर्ट में आंसर दे पाएंगे। आपको पूरा लॉन्ग लिखना है तो फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितने आते हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी होगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है बी 4 का बी जो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्यों है, तो ये पेज नंबर 6 से हम लोग लिखेंगे। अभी जस्ट जो बता रहे थे वहीं से देखते हैं। तो ये आया, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का महत्व। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ से लिखेंगे, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर रनिंग ए कंप्यूटर। Part of it is also known as operating system, which helps to start computer and work as the main platform in order to run any application, है ना। यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस हो जाएगा, है ना। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। इसको छोटा ही साइज का आंसर लिखेंगे, ऐसे इसका इम्पोर्टेंस और भी बहुत सारा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है सी नंबर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितना का क्या क्या टाइप है, वो कितने तरह के होते हैं। तो इसको पेज नंबर 9 और 10 से हम लोग लिखेंगे। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, अभी ऊपर में हम देखते हैं, आपको बता रहे हैं कहाँ पे है ये। देखिए ये ब्रेन बूस्टर के बाद है ये, है ना। यहाँ से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ से लिखना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड में फिर से उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इतना तरह का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से आप लिख लोगे, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा, इसलिए उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, फाइल मैनेजमेंट पे लिखना है, मेमोरी मैनेजमेंट पे लिखना है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल, नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये सारे जो हैं वर्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सब पेज नंबर 7 और 8 में मिलेंगे। मैं आपको सब एक एक करके दिखा देता हूँ, मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोग कर लोगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट, है ना। तो डिवाइस मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये अंडरलाइन किया हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन थ्रू देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। ये वाला लाइन काट दोगे, है ना, डज द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये वाला लाइन नहीं लिखोगे बीच में, क्योंकि ये नीचे वाला ये चारों पॉइंट के लिए दिया गया है, तो ये मत लिखोगे। आप लिखोगे यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन
थ्रू द रिस्पेक्टिव ड्राइवर। उसके बाद यहाँ लास्ट वाला लाइन जोड़ोगे। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट का देख लेते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट में यहाँ से लिखोगे ए फाइल मैनेजमेंट is normally organized into directory. A file system is normally organized into directories for easy navigation and uses. These directories may contain files and other directories. The collective facilities are often known as file system. Operating system does the following activity फॉर फाइल मैनेजमेंट। तो ये तीनों पॉइंट आप लिखोगे। कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजर स्टेटस, etc. डिसाइड हु गेट द रिसोर्सेज, एलोकेट द रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, इतना लिखोगे आप। मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी और मेन मेमोरी, है ना। प्राइमरी या मेन मेमोरी को मैनेज करने का ये जो है सिस्टम है। मेन मेमोरी इज द लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स where each words or bytes has its own address. Main memory provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU. So for a program to be executed, it must be in the main memory. Operating system keep track of primary memory, that is what part of it are in use and what part are not in use. Okay, तो इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट का लिखोगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी, लिख दोगे यहाँ से, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ये वाला लाइन भी जोड़ दोगे। दिस फंक्शन इज कॉल्ड process scheduling और programs responsible for this task is known as traffic controller और operating system does the following activity for processor management। ये तीन पॉइंट याद करोगे, मुख्य है। It keeps track of processor and status of process, allocate the processors to a CPU processor, delocate processor when processor is no longer required। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में दिया गया था, इसमें बस छोटा सा लिखोगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग फॉर द सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट। इट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्स, allocating them as needed. Crucial operations are given priority based on presets, है ना, यानी कि पहले से जो सेट किया गया प्रीसेट्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिटरमिन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेसर और प्रोग्राम। अब देखते हैं प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो रन प्रोग्राम्स इनेबलिंग देम टू ऑपरेट एंड फंक्शन as designed. Okay, so therefore programs have to be designed to run with the particular operating system in order to function as the operating system needs to display any interface and facilitate communication among the programs and other computers connected hardwares. Without the operating system to run it, programs cannot perform their task. तो ये आपका प्रोग्राम कंट्रोल का शॉर्ट नोट्स हो गया। यहाँ से नेटवर्क कंट्रोल का आप शॉर्ट नोट्स लिखोगे, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको पूरा लिखोगे, है ना। इसमें कोई भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गिविंग दैट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप आप अभी जस्ट मैं बताया था, ऑपरेटिंग टाइप था जैसे में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका डेफिनेशन भी लिखना है। ये पेज नंबर 9, 10 और 11 से आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके और यहाँ तक ऑपरेटर तक लिखोगे और फिर इसका यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखना है। तो आप यहाँ से इसको लिखोगे। 1 मिनट में देख लेता हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है कि नहीं, ठीक है। तो
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी, हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है लिखना, तो बिल्कुल वहाँ से एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखोगे जो कि दिया हुआ है आपका। तो यहाँ से लिखोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगा डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेज विथ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलो, तो ये 3 पॉइंट उसमें ऐड करोगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि यहाँ से द टाइम शेयरिंग इज टेक्निक विच इनेबल मैनी पीपल लोकेट एट द वेरियस टर्मिनल टू यूज ए पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। देखो ये आपको यहाँ से टाइम शेयरिंग तक लिखना है, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ नीचे में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ पे देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों दिया है, तो दोनों यहाँ से लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से देखिए मैंने एक ही लाइन ऊपर अंडरलाइन किया है, वो लिखोगे और उसके बाद फिर द एडवांटेज लिखोगे, जो एडवांटेज पूरा है उसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए यहाँ ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके और आपको यहाँ टू अदर नेटवर्क तक लिखना है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, इसमें प्रोग्राम ये रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी करके डालना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है इसलिए। तो यहाँ से एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका पूरा लिखोगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख सकते हो कि यहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है, ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड एज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड to process and respond to input is so small that it controls the environment. The time taken by the system to respond to an input and display of required updated information is termed as response time। यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यहाँ से हार्ड रियल टाइम, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ देना है, इसका अभी मैं नहीं लिखना है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर था ये ना, ये क्वेश्चन नंबर ई नंबर था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अच्छा एडवांटेज डिसएडवांटेज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लोगे। एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इट वर्क्स वेरी फास्ट। और डिसएडवांटेज में लिखोगे कि डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट वर्क as soon as work is done, the same is distributed among all the computers in the network, and hence there is less possibility of correcting the things in real time operating system। ये आप लोग वीडियो को दोबारा से सुन के और इसको लिख लो, है ना। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो ये इतना लंबा क्वेश्चन मैं एग्जाम में नहीं देने वाला हूँ। मैं दूंगा तो मैं बताऊंगा कि डिस्क्राइब एनी 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गिविंग देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो आप कम से कम 3 या 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ याद कर लोगे। अब देखते हैं व्हाट इज CUI एंड व्हाट इज GUI। ये पेज नंबर 11 और 12 में है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया GUI और उसके ऊपर CUI था ना। देखिए CUI और GUI दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI, यहाँ से आप लोग इस चार्ट से इसको पूरा लिखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया, सॉरी डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये G नंबर है तो G नंबर में वो चार्ट लिखोगे। व्हाट आर CUI एंड GUI, इसका आंसर थोड़ा उसी के ऊपर में दिया हुआ था, वहाँ से लिखोगे। इसका थोड़ा आंसर शॉर्ट होगा, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। एक
देखिए यहाँ से लिखोगे CUI का, यहाँ से लिखोगे डेफिनेशन। CUI इज अनदर नेम फॉर कमांड लाइन, समटाइम्स रिफर्ड एज the command screen or a text interface. The command line is a user interface that is navigated by typing command prompts as opposed to using the mouse to perform commands, unlike GUI operating system। यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। ये लिख लोगे CUI में, और GUI का मैं बता दे रहा हूँ। GUI का यहाँ पे है graphical user interface. A GUI uses Windows icons and menus to carry out command such as opening, deleting, and moving files. Although many GUI operating systems are operated through the use of a mouse, the keyboard can also be utilized by using keyboard shortcut or arrow key। यहाँ तक लिख लोगे GUI का। तो इस तरह से 1 नंबर और G नंबर आपका दोनों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन आई थिंक कि एक बचा होगा और, हाँ, तो ये देखो G तक हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, क्योंकि आई नंबर जो है ये आपका आई नंबर का फर्स्ट में हो जाएगा विंडोज 7, और आई नंबर का 2 में हो जाएगा। ये आई नंबर का 2 जो है ये प्रैक्टिकल करने के लिए दिया हुआ है ना। तो ये प्रैक्टिकल में आप लोग बनाइएगा घर में भी, जो जिसके पास कंप्यूटर या मोबाइल में भी आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुलता है, PPT, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में रहता है, आप सबके मोबाइल में आने लगा है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पावर पॉइंट रहता है, तो वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाते हुए दर्शाना है, और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है, CUI और GUI के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं H नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पेज नंबर 13 में है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से लिखोगे ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर platform on the top of which other programs can run on mobile devices. The operating system is responsible for determining the function and features available on your device, such as thumb wheel, keyboard, web synchronization with the application, email, text messaging and more। यहाँ तक आपका ये हो जाएगा मोबाइल operating system। So these questions are very important for your examination. Chapter 1 is coming in your exam, and exam will be online. So a student keep learning, and if you have any problem, if you have any question, please ask me, okay? आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप लिखकर मुझे भेजो व्हाट्सएप में या कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका सॉल्व करूंगा। और ये आपका एग्जाम में आ रहा है, इसमें से आप याद करो, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।